بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ فلوریڈا کے اسکول میں فائرنگ، 17 ہلاک، حملہ آور اسکول سے نکالا گیا، دل جلا تھا۔ امریکہ میں گن کلچر پر بحث پھر شروع۔ امریکہ اسرائیل کو قابو میں رکھے، لبنان نے کیا مطالبہ، ٹلرسن کی صدر میشیل اون سے ملاقات۔ سیریا کی ایئر فورس نے اسرائیل کے ڈرون کو مار بھگایا، ایران نے تناؤ بڑھانے کا الزام رد کر دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں سیریا پر بحث، اسٹافن ڈی مستورا نے کہا موجودہ خون خرابہ 4 سال میں کبھی نہیں دیکھا۔ امریکہ اور رشیا کے سفیروں میں تکرار۔ سیریا پر امریکہ ترکی اختلافات دور کرنے کی کوشش، جیمز ماٹس اور ٹلرسن کی ترک وزیروں سے ملاقات۔ غزہ میں بدترین انسانی بحران، یونائیٹڈ نیشنز کے سفیر نے حالات کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ساؤتھ افریقہ کے صدر جیکب زوما نے آخرکار استعفیٰ دے دیا، سائرل رامفوسا عبوری صدر ہوں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی حیدرآباد پہنچے، علماء اور اہم شخصیتوں سے خطاب، جمعے کو تاریخی مکہ مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھے، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ امریکہ کی فلوریڈا ریاست میں ایک ہائی اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں کم سے کم 17 لوگ ہلاک ہو گئے۔ حملہ آور کی پہچان 19 سالہ نیکولاس کروز کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو اسی اسکول میں پڑھتا تھا اور اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ حملہ آور نے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسے پکڑ لیا گیا۔ یہ 2012 کے بعد امریکہ کی کسی اسکول میں شوٹنگ کا سب سے بدترین واقعہ ہے۔ 2012 میں کینیکٹیکٹ کے ایک اسکول میں ایسے ایک واقعے میں 26 لوگ مارے گئے تھے۔ اس سال امریکہ میں اب تک اسکولوں میں شوٹنگ کا یہ 6واں واقعہ ہے۔ عہدیداروں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آور نے اسکول کے باہر 3 لوگوں کو ہلاک کیا اور اس کے بعد اسکول کی عمارت کے اندر گھس کر دوسرے لوگوں پر اندھا دھند گولیاں چلا دیں۔ 12 لوگ مقام پر ہی ہلاک ہوئے، جبکہ 3 نے ہاسپٹل میں دم توڑا۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ یہ ایک سانحہ ہے جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ کافی نہیں ہیں۔ 3 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ تمام مرنے والوں کی پہچان کر دی گئی۔ مرنے والوں میں اسکول کا فٹ بال کوچ بھی شامل ہے۔ یہ حملہ مقامی وقت کے مطابق دن کے 2:30 بجے کیا گیا۔ یہ حملہ فلوریڈا کے پارک لین ٹاؤن کے ڈگلس ہائی اسکول میں کیا گیا، جو مایامی سے 1 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ شوٹنگ کے دوران سائرن کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پولیس اور دوسری امدادی ٹیموں کے ارکان فوری کیمپس پہنچ گئے اور اسٹوڈنٹس کو بچانے کی کوشش کی۔ اسکول کے اطراف ایمبولینس گاڑیوں اور سرپرستوں کے ہجوم کو دیکھا گیا۔ حملہ آور کو ڈسپلن کی وجوہات پر اسکول سے نکالا گیا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے اسکول سے کیوں نکالا گیا، لیکن نیوز ایجنسی AP نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہا کہ اپنی سابق گرل فرینڈ کے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے اسے نکالا گیا۔ بتایا گیا کہ اس نے اپنی سابق گرل فرینڈ کے ساتھ گالی گلوچ کی۔ پڑوسیوں اور دوستوں نے بتایا کہ وہ مرغیوں، پرندوں، سپلکوں اور مینڈکوں کو بھی بندوق سے مارنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے انسٹاگرام پر بندوق کے ساتھ اپنی تصویریں بھی پوسٹ کی تھیں۔ اسکول میں تقریباً 3000 بچے پڑھتے ہیں۔ اس پورے ہفتے کے لیے اسکول کو چھٹی دے دی گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں فائرنگ کے وحشتناک واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ کسی بھی بچے، ٹیچر یا سرپرست کو امریکہ کے کسی بھی اسکول میں غیر محفوظ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ فلوریڈا کے گورنر رک اسکاٹ نے کہا کہ فائرنگ شیطانی حرکت ہے، لیکن انہوں نے گن کلچر کے بارے میں بحث میں پڑھنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ میں 2003 کے بعد سے اسکولوں میں شوٹنگ کے واقعات میں 291 لوگ مارے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسطاً ہر ہفتے اسکولوں میں ایک شخص فائرنگ کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے۔ اس اسکول میں کئی ہندوستانی بھی پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ ایک انڈین امریکن اسٹوڈنٹ زخمی ہوا ہے، جس کا ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے۔ وہ 9ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ امریکہ میں گن کلچر ایک سنگین مسئلہ ہے۔ سابق صدر براک اوباما گن کلچر کو ختم کرنے کے لیے سخت قانون لانا چاہتے تھے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خلاف ہیں۔ فلوریڈا کے تازہ شوٹنگ واقعے کے بعد امریکہ میں گن کلچر کے بارے میں بحث پھر سے شروع ہو گئی ہے۔
बात करते हैं मिडल ईस्ट के बहरानों की। सीरिया ने अपनी सरहदों के करीब इसराइल के सर्वेलेंस मंसूबों को नाकाम बनाने का दावा किया है। हाल ही में इसराइल के एक F-16 जंगी हवाई जहाज को सीरिया ने मार गिराया था। सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने बताया कि सीरिया की एयर डिफेंस ने कोनेत्रा के आसमान पर इसराइल के सर्वेलेंस हवाई जहाजों यानी ड्रोन्स को नाकाम बनाया और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया। उन्हें सीरिया की हवाई हदूद से बाहर कर दिया गया। हफ्ते के दिन सीरिया की हुकूमत ने कहा था कि उसने इसराइल के एक हमले को नाकाम बना दिया। इसराइल ने 2011 में सीरिया जंग शुरू होने के बाद से कई बार सीरिया के अंदर हवाई हमले किए। बशार अल असद हुकूमत का इल्जाम है कि इसराइल हुकूमत के मुखालिफ दहशतगर्दों और बागियों की मदद के लिए ऐसे हमले करता रहा है। सीरिया से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा है कि सीरिया में अब जैसा तशद्दुद हो रहा है उन्होंने वैसा तशद्दुद पिछले 4 साल में नहीं देखा। सीरिया से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब अमेरिका और रशिया के नुमाइंदों ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े वहशतनाक अंदाज में सिविलियंस को हलाक किया जा रहा है और फरवरी के पहले हफ्ते में ही 1000 सिविलियंस हलाक हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में सीरिया के बारे में वो नुमाइंदा हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस 4 साल की मियाद के दौरान ऐसा खून खराबा नहीं देखा। मस्तूरा ने सीरिया में सरगर्म तमाम फरीकों का नाम लिया जिनमें तुर्की भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने सीरिया की हुकूमत पर भी गौता और इदलिब में बमबारी के लिए तनकीद की। उन्होंने हालिया दिनों के वाक़यात का जिक्र किया जिनमें देर अल ज़ोर के करीब बशार अल असद हुकूमत की फौजों पर अमेरिका का हमला भी शामिल है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने ईरानी टारगेट्स पर सीरिया में इसराइल के हमलों का भी हवाला दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने आखिरी 2 वाक़यात के सिलसिले में अमेरिका का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने बचाव में कार्रवाई करने का हक रखता है। उन्होंने कहा कि बशार अल असद हुकूमत ईरान, हिजबुल्लाह और अपने इत्तेहादियों की कठपुतली बन गई है और ये ताकतें अपने गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक एजेंडे के लिए सीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बशार अल असद हुकूमत को सिविलियंस पर बमबारी और गैस हमलों से रोकने में नाकामी के लिए रशिया पर तनकीद की, जिस पर यूनाइटेड नेशंस में रशिया के नुमाइंदे ने सख्त जवाब दिया। रशिया के नुमाइंदे ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को चाहिए कि वो खून खराबे को रोकने के लिए अपोजिशन ग्रुपों पर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करें। इस दौरान सीरिया में अमन के लिए यूनाइटेड नेशंस और आलमी कोशिशें खतरे में पड़ती नजर आ रही हैं। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने पूरे मिडल ईस्ट में आईएस और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों को फैलाने में अहम रोल अदा किया है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर ने वाशिंगटन के इस इल्जाम को रद्द कर दिया कि ईरान खित्ते में इस्तेहकाम मुतासर कर रहा है। अली रजा मीर यूसुफी ने निकी हैली के इल्जामात का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने एक ऑनलाइन बयान में कहा कि निकी हैली ने बेबुनियाद बयान दिया है जिससे सीरिया की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ईरान की संजीदा कोशिशें मुतासर होंगी। उन्होंने कहा कि पूरे खित्ते में अमेरिका की गलत मुहिम जोइयों और दखल अंदाजियों की वजह से इस्तेहकाम मुतासर हो रहा है और खित्ते के मुल्कों में तबाही आई है जिनमें इराक, सीरिया, लीबिया, लेबनान और अफगानिस्तान शामिल है। वाशिंगटन दूसरे मुल्कों को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने तबाहकुन रोल से बच नहीं सकता। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के नुमाइंदे बशार जाफरी ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा सीरिया की सरजमीन पर अमेरिका और तुर्की की फौजी मौजूदगी को भूल रहे हैं। अमेरिका के वज़ीर दिफा जेम्स माटिस ने कहा कि अमेरिका और तुर्की सीरिया के बारे में अपने इख्तिलाफात दूर करने के लिए बातचीत के ताल्लुक से खुला जहन रखते हैं और वो सीरिया बहरान के ताल्लुक से मुश्तरका बुनियादें तलाश कर रहे हैं। जेम्स माटिस ने नाटो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के मौके पर यह बात कही। उन्होंने इस मौके पर तुर्की के वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की। नाटो वज़ीरों की यह मीटिंग ब्रुसेल्स में हुई। जेम्स माटिस ने तुर्की से कहा कि वो सीरिया में आईएस से लड़ाई पर तवज्जो दे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ टेक्स टिलरसन तुर्की पहुंचे। वो सीरिया के मसले पर अमेरिका और तुर्की के दरमियान तनाव और अख्तिलाफात दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान वो सदर तैयब एर्दोगान और वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोगलू से मुलाकातें कर रहे हैं। हालिया अरसे में तुर्की अमेरिका से मुतालबा करता रहा है कि वो सीरिया में कुर्दों की मदद करना बंद करे। तुर्की फिलहाल सीरिया के सरहदी इलाकों में कुर्दों की फौज YPG के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रहा है। तुर्की ने सीरिया के इदलिब में एक नया ऑब्जर्वेशन पॉइंट कायम किया। इससे पहले भी तुर्की ने सीरिया में ऐसे कई मरकज कायम किए। ईरान ने जर्मनी के इस दावे को रद्द कर दिया है कि हाल ही में सीरिया और इसराइल के दरमियान तनाव में इजाफे में ईरान का रोल है। तेहरान ने कहा कि इसराइली हुकूमत ही खित्ते में तनाव में इजाफे के लिए जिम्मेदार है और खित्ते में बदअमनी और टकराव में इसराइल का ही फायदा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि ईरान एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क है और उसे अपनी बका के लिए तनाव या टकराव पैदा करने की जरूरत नहीं है। बहराम कासमी जर्मनी हुकूमत के तर्जुमान के एक बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने खित्ते में ईरान की फौजी सरगर्मियों पर फिक्रमंदी का इजहार किया था और कहा था कि ईरान के रोल की वजह से खित्ते में तनाव पैदा हो रहा है।
मिडल ईस्ट से मुतल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे निकोले मेलाडोनोव ने गजा में इंसानी बहरान के बारे में खबरदार किया और इसराइल पर इल्जाम लगाया कि वो इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने बंद कमरे की मीटिंग में कहा कि गजा में पानी की किल्लत पैदा हो गई है, दवाखानों में डॉक्टर्स ने सर्जरीज करना बंद कर दिया है। कुवैत और बोलीविया की दरख्वास्त पर यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने यह ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि गजा में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 60% हो गई है और गजा के इन हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ इसराइल जिम्मेदार है। इसराइल ने 2014 में गजा पर हमला किया था और इस जंग में तकरीबन 2200 फलस्तीनी जान बहक हुए थे। गजा में कोई 18 लाख लोग रहते हैं जो बदतरीन इंसानी हालात से दो चार हैं। गजा पिछले 11 साल से इसराइल की नाकाबंदी का शिकार है और इसराइल की मर्जी के बगैर कोई भी चीज़ गजा में आ जा नहीं सकती और अमलन इतने लंबे अरसे से गजा एक खुली जेल में तब्दील हो गया है। और अफसोस की बात तो यह है कि दुनिया के एजेंडे से गजा बाहर हो गया है। इस नाकाबंदी की वजह से गजा में रहने वालों का मेयार ज़िंदगी काफ़ी घट गया है और गरीबी काफ़ी बढ़ गई है। गजा में रहने वाले लोग बुनियादी चीज़ों से भी महरूम हैं और कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है, लेकिन वो बाहर जा नहीं सकते और ना ही गजा के अंदर मेडिकल सहूलतें हैं। फ्यूल की किल्लत की वजह से हॉस्पिटल्स काम नहीं कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने फ़लस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए माली मदद रोकने का भी ऐलान किया था। इस दौरान सेव द चिल्ड्रन तंजीम ने जंग से मुतासरा मुल्कों में लाखों बच्चों के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। इस तंजीम ने कहा कि इन मुल्कों में कई मिलियन बच्चे इंतहाई बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान और रशिया के वजीर तवानाई ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने के बारे में बातचीत की। ये मुलाकात रियाद के अल यमामा पैलेस में हुई। इसराइल के साथ तनाव के बीच लबनान ने कहा है कि वो मुतनाज़ इलाकों पर इसराइल के दावों को रद्द करता है। लबनान के सदर मिशेल ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन से बातचीत करते हुए ये बात कही। टिलरसन मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं। मिशेल ने कहा कि लबनान अपनी सरहदों की हिफाजत करेगा और इसराइल के किसी भी दावे को मुस्तरद करता है। हालिया अरसे में इसराइल ने लबनान पर हमले की धमकियां दी हैं। दूसरी तरफ लबनान की हुकूमत और हिजबुल्लाह ने कहा है कि वह हर कीमत पर लबनान की हिफाजत करेंगे। रेक्स टिलरसन ने कहा कि हिजबुल्लाह लबनान में सियासी अमल का हिस्सा है। जॉर्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टिलरसन ने कहा कि हम एक आज़ाद और जमहूरी लबनान की तायद करते हैं जो दूसरों के असर से पाक हो। हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह ईरान से मुतासिर है और हिजबुल्लाह ईरान के असरात की वजह से लबनान के मुस्तकबिल में अच्छा रोल अदा नहीं कर सकती। हम इस हकीकत से भी वाकिफ़ हैं कि हिजबुल्लाह लबनान के सियासी अमल का हिस्सा है। टिलरसन का यह बयान एक तरह से अमरीका की पॉलिसी से हट कर है क्योंकि अमरीका हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देता है। टिलरसन के साथ मुलाकात में लबनान के सदर मिशेल ने लबनान के करीब समंदर में इसराइल के दावों को रद्द करते हुए कहा कि लबनान अपनी सरहदों के करीब अमन चाहता है और अमेरिका को चाहिए कि वो बेरूत की ज़मीन और पानियों को बचाने में अपना रोल अदा करे और इसराइल को काबू में रखे। मिशेलोन ने अमेरिका से कहा कि वो इसराइल को लबनान की खुद मुख्तारी समंदर और ज़मीन के ज़रिए हमले करने से रोके। बहरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल खलीफा हुकूमत के खिलाफ 2011 की बगावत की 7वीं सालगिरह के मौके पर एहतजाजियों से निमटने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इस मौके पर झड़पों में कई लोग जख्मी हुए। पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद कई जगह लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे। एहतजाजियों में कई औरतें भी शामिल थीं। इजिप्ट की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक साबिक सदारती उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने सदारती इलेक्शन के बॉयकॉट की अपील की है। इजिप्ट में अगले महीने सदारती इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें सदर अब्दुल फतेह अल सीसी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि सीसी हुकूमत तमाम मुखालिफिन को दबा रही है। इजिप्ट के आला ओहदेदारों ने साबिक सदारती उम्मीदवार अब्दुल मुन्नीब अब्दुल फतू और उनकी पार्टी के दूसरे लीडर्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके ताल्लुकात इख्वानुल मुस्लिमून से है जिस पर पाबंदी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। फ्लोरिडा के स्कूल में फायरिंग, 17 हलाक, हमला आवर, स्कूल से निकाला गया, दिल जला था। अमेरिका में गन कल्चर पर बहस फिर शुरू। अमेरिका इसराइल को काबू में रखे, लबनान ने किया मुतालबा। टिलरसन की सदर मिशेल ओन से मुलाकात। सीरिया की एयरफोर्स ने इसराइल के ड्रोन को मार भगाया। ईरान ने तनाव बढ़ाने का इल्जाम रद्द कर दिया। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया पर बहस। स्टाफन डी मस्तूरा ने कहा मौजूदा खून खराबा 4 साल में कभी नहीं देखा। अमेरिका और रशिया के सफीरों में तकरार।
सीरिया पर अमेरिका तुर्की अख्तलाफात दूर करने की कोशिश, जेम्स माटिस और टिलरसन की तुर्क वजीरों से मुलाकात। गजा में बदतरीन इंसानी बहरान, यूनाइटेड नेशंस के सफीर ने हालात के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। साउथ अफ्रीका के सदर जैकब जुमा ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया, साइरल रैमफोसा अबूरी सदर होंगे। ईरान के सदर हसन रूहानी हैदराबाद पहुंचे, उलमा और अहम शख्सियतों से खिताब, जुमे को तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। ईरान के सदर हसन रूहानी 3 दिन के हिंदुस्तान दौरे पर पहुंचे। वो सबसे पहले हैदराबाद में उतरे, जहां उन्होंने एक 5 स्टार होटल में उलमा, स्कॉलर्स और अहम शख्सियतों और हैदराबाद में रहने वाले ईरानियों से खिताब किया। हैदराबाद में उनका यह दौरा 2 दिन का होगा, जिसके दौरान वो जुमे को तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और खिताब करेंगे। वो सालार जंग म्यूजियम देखने भी जाएंगे। इस दौरे के दौरान रूहानी हिंदुस्तानी लीडरशिप के साथ इलाकाई और आपसी दिलचस्पी के मसाइल पर बातचीत करेंगे और दोनों मुल्कों के बीच सरमायाकारी और तिजारत का भी जायजा लेंगे। मुमलिकती वजीर तवानाई आर.के. सिंह और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर E.S.L. नरसिम्हन ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर हसन रूहानी का इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो ताज कृष्णा होटल बंजारा हिल्स गए। इसी होटल में उन्होंने अहम शख्सियतों से खिताब किया और अपने दौरे के मकसद बयान किए। इस मौके पर उन्होंने ईरान और हैदराबाद के दरमियान खास और कदीम ताल्लुक का भी जिक्र किया। रूहानी जुमे को गुंबदान कुतुब शाही और दूसरे तारीखी मकामात का भी दौरा कर सकते हैं। ये रूहानी का हैदराबाद में दूसरा और सदर बनने के बाद पहला दौरा है। रूहानी 21 रुकनी डेलीगेशन के साथ इंडिया का दौरा कर रहे हैं। वो जुमे की शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हफ्ते को मुलाकात करेंगे। समझा जा रहा है कि इस मौके पर रूहानी ईरान में सरमायाकारी के लिए हिंदुस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को दावत देंगे। वो वजीर आजम मोदी के साथ खासतौर पर चाबहार प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत चाबहार प्रोजेक्ट पर $500 मिलियन लगाएगी। ये किसी बैरूनी मुल्क में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हिंदुस्तान इतनी दिलचस्पी ले रहा है। समझा जा रहा है कि चाइना के वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम या प्रोजेक्ट का तोड़ करने के लिए चाबहार में इतनी दिलचस्पी ली जा रही है। रूहानी हफ्ते के दिन मोदी से मिलेंगे। इस मौके पर बाद समझौतों पर दस्तखत होने का इम्कान है। ईरान हिंदुस्तान को तेल सप्लाई करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान रवाना होने से पहले रूहानी ने ईरानी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में उनका दौरा तहजीबी नौयत का होगा, जबकि दिल्ली में वो सियासी और तिजारती मामलात पर तवज्जो देंगे। अफगानिस्तान के तालिबान ने अमरीकियों से कहा है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जंग खत्म करने के लिए दबाव डालें। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस सिलसिले में 10 सफ़ों की एक दस्तावीज़ जारी की। अमरीका पिछले 17 साल से अफगानिस्तान की जंग में फंसा हुआ है। साउथ अफ्रीका के सदर जैकब जुमा ने इस्तीफा दे दिया, जिसके साथ ही हुक्मरान अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ उनका टकराव खत्म हो गया है। पार्टी ने करप्शन के इल्जाम में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने का ऐलान किया था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग पीर को हुई थी, जिसमें उनसे कहा गया था कि वो इस्तीफा दे दें। जैकब जुमा ने टेलीविजन पर पेश होते हुए आखिरकार अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वो पिछले 9 साल से साउथ अफ्रीका के सदर थे और 2019 के इलेक्शंस में भी लड़ना चाहते थे। इस दौरान जैकब जुमा ने उनकी जगह साइरल रैमफोसा को लीडर बनाने के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के फैसले की मुखालिफत की। 75 साल जुमा के खिलाफ इससे पहले अपोजिशन पार्टियों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की थी, लेकिन वो उस वक्त बच गए थे। उम्मीद की जा रही है कि नायब सदर रैमफोसा अबूरी सदर की हैसियत से जिम्मेदारी संभालेंगे और वो उस वक्त तक अबूरी सदर रहेंगे जब तक बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में नए सदर को नहीं चुन लिया जाता। जैकब जुमा के इस्तीफे पर साउथ अफ्रीका के तमाम तबकात ने खुशी का इजहार किया। ऐसा इल्जाम लगाया गया है कि वो एक इंडियन इमिग्रेंट खानदान पर काफी मेहरबान थे, जिसे गुप्ता फैमिली के नाम से जाना जाता है, और इस खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने काफी काम किया। इथियोपिया के वजीर आजम ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वजीर आजम और हुक्मरान इत्तेहाद के चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम जील एमार एमसोलिन का यह इस्तीफा एक ऐसे वक्त सामने आया है जब मुल्क में कई मामलात पर तनाव पाया जाता है। अमेरिका की मिनेसोटा रियासत के एक शहर में मेयर के ओहदे की दौड़ में शामिल मुसलमान खातून को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। वो रॉचेस्टर शहर के मेयर के ओहदे की दौड़ में शामिल है। रेगीना मुस्तफा ने कहा कि उन्हें एक मिलिटेंट मूवमेंट की तरफ से जान से मारने की ऑनलाइन धमकी दी गई है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मैं ऐसी धमकियों से नहीं डरती, मैं किसी भी धमकी को संजीदगी से लेती हूं और कार्रवाई करूंगी।
حالیہ عرصے میں سعودی عرب میں بہت کچھ بدل گیا ہے. اب حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں کسی پابندی کے بغیر ویلنٹائن ڈے منایا گیا. اس موقع پر تحفوں، پھولوں اور کارڈز کی دکانوں پر زبردست رش دیکھا گیا اور پولیس یا عہدیداروں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. صرف یہی نہیں بلکہ ایک فتوے کی بھی خوب تشہیر کی گئی جس میں کہا گیا کہ ویلنٹائن ڈے منانے میں کوئی برائی نہیں ہے. عرب نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے سعودی عرب میں اخلاقی معاملات کے ادارے کے سابق صدر شیخ احمد القاسم الغامدی نے کہا کہ جس طرح نیشنل ڈے اور مدرز ڈے منایا جاتا ہے اسی طرح ویلنٹائن ڈے بھی منایا جا سکتا ہے. یہ ایک سماجی تہوار ہے, یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ محبت ایک فطری جذبہ ہے اور ویلنٹائن ڈے کو ایک انسانی جذبے کی نظر سے دیکھنا چاہیے. الغامدی نے کہا کہ محبت کا جشن صرف غیر مسلموں تک محدود نہیں ہے. ایسی کئی دنیاوی چیزیں ہیں جن سے نمٹنے میں ہم سبھی دلچسپی لیتے ہیں. اس دوران ایجپٹ کے ایک عالم احمد ممدو نے بھی ایک فتویٰ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کے لیے کوئی ایک دن خاص کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. تیونس کے مفتی اعظم عثمان بطیخ نے بھی ایسا ہی فتویٰ جاری کیا. اسلامک ریسرچ سینٹر سعودی عرب کے رکن محمد الشہاد الجندی نے کہا کہ ایسے تہواروں سے انسانی رشتے مضبوط ہوتے ہیں. فرانس کے مسلمانوں نے صدر ایمانوئل میکرون سے کہا ہے کہ وہ اسلام کے معاملات میں دخل نہ دیں. حال ہی میں فرانس کے صدر نے کہا تھا کہ وہ فرانس کی ریاست اور اسلام کے درمیان تعلقات کی پھر سے تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. فرانس کے مسلمانوں کی تنظیم فرینچ کاؤنسل آف دی مسلم فیتھ کے صدر احمد اوگراس نے نیوز ایجنسی رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کو اپنی حدوں میں رہنا چاہیے. چائنا نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے اروناچل پردیش دورے پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ساؤتھ تبت کا حصہ ہے جسے بیجنگ اپنا علاقہ قرار دیتا ہے. چائنا نے کہا کہ اس سلسلے میں ہندوستان سے سفارتی احتجاج کیا جائے گا. چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مودی کے اروناچل پردیش دورے کے بارے میں پوچھے جانے پر کہا کہ چائنا انڈیا کے سرحدی تنازع پر چائنا کا نقطہ نظر بالکل صاف ہے. چائنا کی حکومت نے نام نہاد اروناچل پردیش کو کبھی قبول نہیں کیا ہے اور وہ متنازع علاقے میں ہندوستانی لیڈرز کے دورے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے. ہم اس سلسلے میں ہندوستان سے احتجاج کریں گے. چائنا نے اس سے پہلے بھی ہندوستان کی اہم شخصیتوں کے اروناچل پردیش میں دوروں پر اعتراض کیا ہے. امریکہ میں چائنا کے سفیر نے واشنگٹن کو وارننگ دی ہے کہ وہ بیجنگ کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہ کرے. انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ڈر کا نتیجہ ہے. چائنا کے سفیر سی ٹینکائی نے چائنا کے نئے سال کے موقع پر سفارت خانے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. آسام میں انڈین ایئر فورس کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس سے 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے. یہ ہیلی کاپٹر اروناچل پردیش جا رہا تھا. سمجھا جا رہا ہے کہ تکنیکی وجوہات کے بنا پر یہ حادثہ پیش آیا. عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں. کرناٹک کے بنگلورو میں ایک انڈر کنسٹرکشن برج گر پڑا جس سے بعض لوگ زخمی ہوئے. نیوز ایجنسی ANI نے یہ بات بتائی. جس وقت حادثہ پیش آیا وہاں مزدور کام کر رہے تھے جن کی تعداد کم سے کم 20 بتائی گئی. فوری امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. فلوریڈا کے اسکول میں فائرنگ، 17 ہلاک. حملہ آور اسکول سے نکالا گیا دل جلا تھا. امریکہ میں گن کلچر پر بحث پھر شروع. امریکہ اسرائیل کو قابو میں رکھے، لبنان نے کیا مطالبہ. ٹلرسن کی صدر مشیل اون سے ملاقات. سیریا کی ایئر فورس نے اسرائیل کے ڈرون کو مار بھگایا. ایران نے تناؤ بڑھانے کا الزام رد کر دیا. یونائیٹڈ نیشنز میں سیریا پر بحث. اسٹافن ڈی مستورا نے کہا موجودہ خون خرابہ 4 سال میں کبھی نہیں دیکھا. امریکہ اور رشیا کے سفیروں میں تکرار. سیریا پر امریکہ ترکی اختلافات دور کرنے کی کوشش. جیمز مارٹس اور ٹلرسن کی ترک وزیروں سے ملاقات. غزہ میں بدترین انسانی بحران. یونائیٹڈ نیشنز کے سفیر نے حالات کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا. ساؤتھ افریقہ کے صدر جیکب زوما نے آخرکار استعفیٰ دے دیا. سائرل رامفوسا عبوری صدر ہوں گے. ایران کے صدر حسن روحانی حیدرآباد پہنچے. علماء اور اہم شخصیتوں سے خطاب. جمعے کو تاریخی مکہ مسجد میں نماز پڑھیں گے.
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.